बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम नंबर 1। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारे पास न्यू सिलेबस है फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर का एजे के का जो न्यू टेक्स्ट बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है उसका चैप्टर 1 का सेकंड प्रॉब्लम है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस obtain an expression for टाइम पीरियड टी यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस का मेथड यूज़ करते हुए यहाँ पे पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, इट्स मीन टाइम पीरियड टी इज डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। ओके, we can write it as t is proportional to its length. And what is the power of length? It is unknown, so we use a as a variable. Similarly, time is also depends upon acceleration, and an pendulum move with the acceleration due to gravity, so that its acceleration is the acceleration of gravity. Okay, that is t is equal to, or t is directly proportional to g, because an acceleration move with the acceleration due to gravity. Say this amount of g is unknown and its power is unknown, that is represented by b. We can write equation 1 and equation 2 as time period t is proportional to L power a and g power b. But the question is that what is a and what is b? Say this is equation no 3. Students, first of all we will remove this proportionality sign. T is equal to k L power a and g power b. Okay, here students, k is the proportionality constant, and we know that dimension analysis is silent about constant, so that the dimension of constant will not be considered here. We will only solve a and b. T is equal to k and L is equal to a, L की power a and g power b. Students, as we know that dimensions are dimensions of as we know that the dimensions of physical quantities like time period, length and g. Hence the dimension for time is m is 0, L is 0 and t is 1. Okay, similarly dimension for length is m is 0, there is no mass in length, and L is 1 and there is no time in length. This is the dimension for length. And similarly the dimension for g is equal to m, there is no mass in gravitational acceleration, L is 1 and t is minus 2. L t power minus 2 is the dimensions of length, acceleration and time. Suppose this is equation number a and this is equation 4, this is equation 5, this is equation 6. When we put equation 4, 5 and 6 in equation a, we will get the final answer as the dimension of equation 4, equation 5 and equation 6 in equation a. This will become m for time t, m naught L naught t power 1 is equal to, k will remain as it is, k into for length a, m 0 L1 t minus 2 whole power is a. Okay, multiply by g, where g, the dimensions of g are m power 0 L1 t power minus 2. Okay, and the power of g is b. Finally, when we multiply this a, the quantities present inside,
these brackets, then m power 0 l power 0 t power 1 is equal to k into m power 0 l into a t into minus 2a and m0 lb and t power minus 2b. Let's suppose this is फाइनली हमने क्या किया, इसकी पावर्स जो थी इसकी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दी ये ए और बी को। जब हम इनको इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास m की पावर 0 l0 t1 विल बी इक्वल टू k इंटू m l इज इक्वल टू l इंटू a एंड t विल रिमेन एज इट इज 0 मल्टीप्लाई बाय m नॉट l पावर b t पावर माइनस 2b। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। पहले इन सब क्वांटिटीज़ को ऐड कर देते हैं, जहाँ पे जो कॉमन है इन सबको ऐड कर देते हैं। m नॉट l नॉट t की पावर 1 इज़ इक्वल टू k इंटू m 0 हैं, इनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं और एज इट इज़ 0 भी लिख सकते हैं, इंटू l a एंड b। इट्स मीन l की पावर a प्लस b आ गई। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड की जा सकती हैं, ये हमारे पास मैथमेटिकल रूल है। और टाइम t, हेयर टाइम t की पावर 0 और यहाँ पे माइनस 2b, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस 2b। ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई। अब हमने इस साइड वाली क्वांटिटीज़ को इस साइड वाली क्वांटिटीज़ के साथ कंपेयर करना है। ये m की पावर 0, इधर भी m की पावर 0। इट्स मीन m जो है वो मैथ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम है। तो हम क्या लिखेंगे, मैथ इज़ not depends upon the time period of pendulum। ये हमारे पास मैथ्स जो है ये इस पर डिपेंड नहीं करती। किसने बताया हमें, डायमेंशन एनालिसिस ने। इम्प्लाइज दैट एल नॉट इज ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू एल इंटू ए प्लस बी। इस तरफ लेंथ किसकी इक्वल आ गई, ए प्लस बी। इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी, बेसिस सेम थी तो पावर्स को कंपेयर कर सकते थे। ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है 1 2 हम पहले भी नाम दे चुके हैं, बाय द वे हम यहाँ पे भी इसको एज इज नाम दे देते हैं। इम्प्लाइज दैट टाइम टी इस तरफ क्या है 1 है, दूसरी तरफ टी क्या है -2b। तो इम्प्लाइज दैट बेसिस सेम, पावर्स कंपेयर की जा सकती हैं। 1 इज इक्वल टू -2b से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इम्प्लाइज दैट this is equation number 2 and implies that b is equal to -1/2। हमारे पास b की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 करते हैं इसको, और 3 को हम इस 1 में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट a प्लस इंटू बी की जगह पे हम लिखेंगे 1/2, दिस इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट a -1/2 विल बी इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1/2। इट्स मीन हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई 1/2, b की वैल्यू भी क्या आ गई -1/2। तो जो हमारे पास फार्मूला था यहाँ पर, ये जो हम फार्मूला लिख कर आए थे इक्वेशन नंबर ए का, हम यहाँ पे ये जो ए और बी की वैल्यू है जो अभी हमने निकाली है, ये वैल्यू ए की और बी की हम इस इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन ए क्या है हमारे पास, टी इज इक्वल टू के एल पावर ए एंड जी की पावर बी। तो हमने क्या किया, एज फ्रॉम इक्वेशन ए टी इज इक्वल टू के एल पावर ए एंड जी की पावर बी। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास क्या आ गया, t इज़ इक्वल टू के एज इट इज़ एल पावर ए की पावर कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय जी की पावर क्या है -1/2। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, t इज़ इक्वल टू के इंटू एल डिवाइडेड बाय
ये एल की पावर 1/2, ये -1/2 है, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो ये +1/2 हो जाएगी। 1/2 हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी के ऊपर भी 1/2, इसके ऊपर भी 1/2। तो दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम विच इज ओवर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू वेरी मच।